Let's shift our focus to the national capital because on day 2 of the Delhi Assembly session, high drama is expected as the BJP-led government prepares to table pending CAG reports on the previous AAP administration. Sources indicate that 2 to 3 of the 14 reports, including one on the former liquor policy, will be presented today, while the Sheesh Mahal audit is unlikely. As per sources to Times Network, the CAG audit on Delhi's pollution reportedly highlights flaws, inaccuracies, and non-compliance with standard norms. In fact, it also points out that monitoring stations fail to record accurate AQI data during critical periods, and the reports are expected to spark clearly heated political exchange, whether we're talking about between the BJP and the Aam Aadmi Party. Listen into the reactions. हमारा वादा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था। अरविंद केजरीवाल जी के घोटाले जिनको 3 साल से दबाकर बैठे हैं, ये पहली सरकार थी जब हाई कोर्ट में नेता विपक्ष को जाना पड़ता है कैग रिपोर्ट को टेबल कराने के लिए। लेकिन अब आज कैग रिपोर्ट टेबल होगी। अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों को बेनशर किया जाएगा। जो दोनों हाथों से उनके और उनके मंत्रियों ने दिल्ली को लूटा था, उसका हिसाब दिल्ली के लोगों के सामने रखा जाएगा। ये अभी 14 कैग रिपोर्ट हैं। अभी इसके बाद उनके खुद के घर शीश महल की रिपोर्ट आएगी। उनके ऑफिस, आप सुनकर हैरान होंगे, मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस के ऊपर भी कोई 2-4 करोड़ नहीं लगाया। शीला दीक्षित जी जो ऑफिस छोड़ के गई थी, उसके बाद जो ऑफिस अब आप देख रहे हैं वो शीश महल से भी कहीं आगे है और उस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपया लगा है। वो भी अब के आपके सामने आएगा। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। they have to answer each and every corruption which they have done in the previous government. जहां तक केजरीवाल साहब का सवाल है, केजरीवाल से लेकर आतिशी से लेकर और सोमनाथ भारती तक, इन सब के जेल जाने की तैयारी है। पहला मुद्दा शराब नीति का है, जिसमें तो कोर्ट ही इनको जेल में भेजेगा। लेकिन जिस तरह के घोटाले, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, चाहे वो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमरों में घोटाला हुआ, इन सब का जवाब एक एक परत खुलेगी और जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के लोगों का जो पैसा है, उस पैसे का जवाब इनको देना पड़ेगा। Let me cut across to Nikhil Lakwani, my colleague, who will help us better understand how this is going to be panning out today. Nikhil, very good morning to you. Given the fact that this wasn't expected lines in terms of what would be tabled, but of course the center focus will be on specific agendas here. What are we given to understand, while it is but obvious that it will be a heated political exchange today? So Nivedna, as we speak, Delhi LG V.K. Saxena, he has arrived at the Delhi Assembly and he is going to address for the very first time after the formation of the BJP government in the capital city. So his address is expected to go for about half an hour, wherein he will keep the agenda and he is going to address entire assembly. And post 12 p.m. we are expecting that the 14 CAG reports are going to be tabled, although there is no clarity, Nivedna, as yet as to how many would be able to be tabled today. But what we are hearing is that some of the important CAG reports in context to the liquor policy scam, that is something which is going to find its mention for the today's assembly session, although entire 14 are not going to be presented in just a day itself. It will be followed later in the other days of the remaining days, so to say, of the Delhi Assembly session. But today is the important day wherein we can expect 2 to 3 of the CAG reports which are going to be tabled. Remember, there are 14 in total and these were pending for a very long time, and these were not tabled by the previous Aam Aadmi Party-led Delhi governments. With now the BJP into the power, they already announced in the first cabinet meeting that in the first session itself, which is currently ongoing, they are going to table the CAG reports. Now it tells us about the working of different departments of the Delhi government. It also comprises of the finance, revenue, accounting, mitigation and prevention of the vehicular pollution. There is DTC report as well, liquor policy, Sheesh Mahal. So these are the couple of important pointers which are going to be seen. In total, as we have already said, 14 are going to be there, but we need to see, Nivedna, as to how many would be able to be presented on the table today before the assembly. Post that, we are going to see as to how the Aam Aadmi Party, particularly the LOP, Atishi, who has been the former chief minister, they are going to react on those particular table, because the allegations which were made by the Bharatiya
Janata Party when they were in the opposition, that despite all the efforts, the CAG reports are not being tabled. Delhi LG VK Saxena, he also expressed his concern in the last few days about the same. The matter was also raised by Vijender Gupta before the High Court as well. But now that the BJP into the power, they are going to present gradually on the table before the assembly. Back to you. All right, Nikhil, I appreciate you putting that into context for us. But like you have mentioned that Vicky Saxena is at the Delhi Assembly, is going to be addressing as well. We are getting live visuals of the same. Let's listen to what he said. एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट। हमारे ऑफिस। किनके साथ आए? हमारे ऑफिस। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल,
अनाधिकृत कॉलोनियों का गोपाल राय, नियमितीकरण सही रात को एवं बाहर करिए। किफायती आवास। चलिए बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल्स क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए चलो चलिए बाहर करिए, मार्शल्स फॉलो द ऑर्डर्स, इमीडिएट। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन ना लेना पड़ेगा, देख लो आप, एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of status quo cannot be a matter of state policy। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग निम्न मध्यम मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें, आउट करो।
मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुग्गी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम All right, clearly massive drama on day 2 of Delhi Assembly session. What we have looked at is while the Lieutenant Governor has slammed the AAP government in his address, 12 AAP MLAs have been suspended. Moreover, there's a clear uproar over the CAG report. A leader of opposition, Atishi, has also been asked to leave the house. Gopal Rai has also been sent out. But more importantly, we'll continue to track all that is unfolding here. But for now, we're slipping a quick break here on The Big Story. Stay with us. We're going to be right back with lots more on the other side.